صدر اور سرپرست اعلیٰ ممتاز شخصیت عالی جناب زاہد علی خان صاحب ایڈیٹر روزنامہ سیاست حضرات، سب سے پہلے تو میں معین بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب بھی موقع ملتا ہے ہم کو وہ اپنے شادی خانے کی خدمات پیش کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے مددگار بنتے ہیں۔ آج انہوں نے جس بات کا اعلان کیا کہ شادی کو آسان کرنے کے لیے یہ ایک شادی خانے کے مالک کے دل کی دھڑکن ہے، ورنہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج شہر میں جو شادی خانے بن رہے ہیں یہ 5 اسٹار نہیں ہے بلکہ 7 اسٹار شادی خانے ہیں، جہاں پر ناچ گانے کا پروگرام، پھولوں کے اسراف اور دیگر تقاریب میں اس طرح کا پیسہ مسلمانوں کا خرچ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری مالی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور بھی خراب ہو رہی ہے۔ ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم شادی منعقد کرتے ہیں بیٹی کے ماں باپ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ شادی کے دن کے انتظامات، اس کے کھانے کے اخراجات، اس کے جہیز کے اخراجات، گھوڑے کے اخراجات، یہ ایسے مطالبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت سدھرنے کے بجائے بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے، تقریباً روز 10-12 شادیوں کے رخے مجھے ملتے ہیں، لیکن میں انہی شادیوں میں جانے کی کوشش کرتا ہوں جو اسراف سے دور رہتی ہیں، کیونکہ آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوازمات پر اور شادی خانے کے اخراجات پر، پھولوں کے اسراف پر اور دیگر خرافات پر جو خرچے آ رہے ہیں یہ غریب بیٹی کے ماں باپ کے سر جاتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ولیمے کی دعوت کا اہتمام ہو جائے، اور آج جبکہ زیادہ تر لوگ بڑے بڑے محلات میں رہنے کے بجائے فلیٹس میں رہ رہے ہیں، تو یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہ فلیٹ میں کہیں پر شادی کریں، لیکن شادی خانوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن شادی خانوں کے انتخاب کے لیے آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ شادی خانے جہاں پر اسراف نظر آتا ہے وہ شادی خانوں میں شادی نہ کرتے ہوئے ایسے چھوٹے شادی خانوں میں جہاں پر یہ اہتمام ہو سکتا ہے اس بات کی کوشش کریں اور وہاں پر اپنے بیٹی اور بیٹوں کی شادی کا اہتمام کریں۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹے کی طرف سے جو مطالبات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شادیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ آج شہر حیدرآباد میں 30-35 ہزار لڑکیاں ایسی ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ اسراف نہ کرنے کی وجہ سے رکی پڑی ہیں۔ ان کے کون ذمہ دار ہے؟ ان کے ذمہ دار ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی ترقی کرنے کے بجائے اگر میں اپنی بقیہ زندگی کو مسلمانوں کی معاشی تعلیمی ترقی میں استعمال کروں تو انشاءاللہ مجھے بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائے گا، اور میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں، مسلمانوں کو معاشی میدان میں آگے بڑھا سکوں۔ یہ بات جب میرے دل میں آئی ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج بقیہ زندگی میری میں انشاءاللہ عامة المسلمین کی خدمت اور ان کی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے اپنا صرف کروں گا۔ اسی طرح یہی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جو عزتیں تھیں، جو ہمارا موقف تھا آج حیدرآباد میں، وہ ختم ہو رہا ہے، اس کو پھر سے دوبارہ ہم کو بحال کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو کام بھاگلپور کے فسادات میں مسلمانوں کی مدد کے لیے شروع ہوا وہ آج
गुजरात में सियासत की जानिब से, मिलत फंड की जानिब से वहाँ पर 1000 से ज़ायद मकानात बनाकर वहाँ मुसलमानों के लिए वो मकानात तलब किए गए। आज मुजफ्फरनगर में जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुजफ्फरनगर में तालीम का फुकदान है। वहाँ पर बच्चों की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है। सियासत मिलत फंड ने ये कोशिश की है, वैसे आम ट्रस्ट के साथ हम चलकर वहाँ पर इस बात की कोशिश करें कि वहाँ के लोगों में तालीम का आगाज़ करें और तालीम वहाँ फैलाएं। इसीलिए हमने वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर और एक स्कूल कायम किया है जिसमें 300 से ज़ायद बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने सारे मसाइल के मुकाबला करने के लिए हम तैयार रह सकते हैं। अगर हमें तालीम ना हो तो हम बेकार बन जाएंगे। इसीलिए ये कोशिश हो रही है कि सारे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मुसलमानों में तालीम का फुकदान है, जहाँ पर भी मुसलमानों की माशी हालत ख़राब है, हम इस बात की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम सियासत और मिलत फंड और फैज़ आम ट्रस्ट के तहत इन सारे बातों में मुसलमानों को तालीम से और माशी मसाइल से दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है दूबदू का, इसके बहुत अच्छे नताइज हमको ज़ाहिर हो रहे हैं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुकाबला हमें आज सूरत कर गया है कि हम दीगर कौमों की तरह अपनी शादियों का एहतमाम करें। कल ही मुझे पता चला है कि इतने दूबदू के प्रोग्राम और शादी को आसान बनाने की जो हम बात कर रहे हैं, तो कल शहर में एक शादी के लिए 2 फीट का दावतनामा जारी किया गया और वहाँ पर 45 किस्म के खानों का एहतमाम किया गया। तो आप देखिए कि इस तरह इसराफ से अगर यही पैसा मुसलमान गरीब भाइयों की मदद के लिए, गरीब भाइयों की तालीम के लिए, उनको किसी कारोबार से लगाने के लिए अगर खर्च होता है, तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में एक भी मुसलमान 2 रोटी का मोहताज नहीं रह सकता। आप इस बात पर गौर करिए कि जो इसराफ हमारे हो रहा है, हम अगर बैठकर उसके साथ कोई अमल करें तो इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश हो सकती है कि मुसलमान दो वक्त का पेट भर के खाना खा सकता है, मुसलमान तालीम हासिल कर सकता है। हमको अपने बच्चों की तालीम के लिए एक वक्त का खाना भी अगर छोड़ना पड़े तो मैं चाहता हूँ कि वो एक वक्त का खाना छोड़ें और अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं। इसलिए कि आज तालीम ही इंसान को मोतबर बना सकता है। पैसा नाजायज़ कमाया जा सकता है लेकिन तालीम नाजायज़ कमाई नहीं जा सकती। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है और माँ बाप जब तक इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, अपने बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। आज 16,000 हमारे नौजवान हाईटेक सिटी में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी फाल बात है कि आज हमारे इतनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे हाईटेक सिटी में काम कर रहे हैं और उनके लिए मस्जिद की ज़रूरत है। वहाँ पर करीब में कोई मस्जिद नहीं है जहाँ पर ये 14,000 बच्चे नमाज पढ़ सकते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आज हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए मस्जिद बनाने हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कल की शादी में जो इसराफ हुआ है, उस इसराफ से अगर एक वहाँ मस्जिद बनाई जाए तो यकीनन उन 16,000 बच्चों को वहाँ पर नमाज की सहूलतें मुहैया हो सकती हैं। लेकिन इस बात पर गौर करने के लिए हमको ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है। तो शादी में जो एहतमाम हो रहा है, वो एहतमाम को मैं तो ये चाहता हूँ कि वन डिश की शादी हो। इसलिए कि कल मैं एक शादी में गया था, मुझे मजबूरन दूल्हे से मिलकर वापस आना पड़ा। मैंने जब देखा कि सब लोग खाने पे हैं, मैं कुछ देर से पहुंचा था, वहाँ पर भी टेबल पे नवाज़ की इतनी भरमार थी कि मैं वहाँ से निकलकर दूल्हे के बाप को ये बोलता हुआ निकला कि ये आपके मुतालिबात पर हो रहा है, इससे बचिए आप। अगर इससे न बचेंगे तो अल्लाह के पास आपकी पूछ होगी कि अल्लाह ये पूछेगा कि ठीक है, तुमने एक मासूम लड़की को अपने घर लाने के लिए अब एक मासूम बच्ची के माँ बाप पर इतना भार डाला है,
जिस के लिए अल्लाह के पास तुम्हारी पूछ होने वाली है, और मैं तुम्हारे घर का खाना खाने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ पर भी इस तरह का इसराफ हो रहा है, आप वैसे शादियों का बाइकआउट। मोहित भाई यहाँ बैठे हैं, मोहित भाई बहुत अच्छे कैटरर हैं, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत अच्छा शादी खाना भी रखे हैं वो, लेकिन उनसे भी मेरा ये मुतालबा है कि आप अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपने हाल को देते हैं। जो इसराफ हो रहा है उससे बचने के लिए मैं मोहित भाई साहब से खास तौर पर दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी शादियों में जहाँ गाने वगैरह का प्रोग्राम है, जहाँ नाच है, ये इस किस्म के खराबात हैं, ऐसी शादियों की कभी आप यहाँ पर इजाज़त मत दीजिए। और इससे जो अमल होगा तो दीगर शादी खानों के मालिकीन को भी इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि वो किस तरह इन शादी खानों को, अपने शादी खानों को इस इस्तेमाल से रोक सकते हैं। मैं ये दावतनामा आपके पास पेश करने के निकाह में इसका लिफाफा इतना बड़ा और ये शादी खाना इतना, शादी का रुखा जो छपा है, इतना इसराफ हम नेक कामों के इस्तेमाल कर सकते और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते। इस तरह से अखराजात करते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? क्या अल्लाह ताला ने आपको जो दौलत दी है इसलिए दी है? आपको अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है उसका एक एक पैसे का आपसे हिसाब किया जाएगा। आप 1 रुपए का रुपया भी छपा सकते हैं, आप 1000 रुपए का भी रुपया छपा सकते हैं, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि आज जो हालात मिल्लत इस्लामिया के हैं उसके तहत इस बात की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप इतने बड़े रुपये छापें, इतने ज़्यादा अखराजात करें शादियों में। शादी को आसान करें, शादी की तकरीब तो आप मस्जिद में भी कर सकते हैं। रिसेप्शन के लिए अभी गुज़िश्ता महीने जिद्दा के इमाम साहब आए थे, उनके लड़के की शादी थी। लड़का भी किसी वहाँ का इमाम है, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है वो, और उसकी शादी में भी मस्जिद में शादी हुई और उसका एहतमाम दावत का एक शादी खाने में किया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक डिश यानी सिर्फ हलीम पर उन्होंने शादी का एहतमाम किया था। इसलिए नहीं कि उनके पास दौलत नहीं है, दुल्हन वालों के पास भी दौलत है, दूल्हे वालों के पास भी दौलत है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हलीम पर एक डिश पर शादी की, जिसका मैंने इस्तकबाल किया और मैंने उस शादी में शरीक होकर उनको मुबारकबाद दी कि ये पहल जो आपने की है कि हैदराबाद के उलमा और मशाइखीन को भी करना चाहिए। उनको भी इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो एहतमाम दूबदू का प्रोग्राम हो रहा है उसका वो खैर मकदम करें और उसके लिए अवाम को पाबंद करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको मुफ्ती बनाकर, इमाम बनाकर पेश किया है, तो उनको अपनी खिदमत से, अपने ओहदे से इस बात से इस्तेफादा करना चाहिए कि आमदुल मुस्लिमीन को इस लानत से, इसलिए कि मैं इसको लानत समझूंगा कि शादी का एहतमाम करने के लिए इतना खर्च करना ये बहुत ही बेकार की बात है। इस पर आप सब गौर कीजिए। और आज जो दूबदू का प्रोग्राम हो रहा है, मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि ये अहद करके चलिए कि बच्ची के माँ बाप पर कोई असर डाले बगैर अपनी शादियों का एहतमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ जमा हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि आप किस तरह अपने शादी के इंतखाब के लिए, अपने शादियों के बेटियों की शादी के इंतखाब के लिए इस तरह यहाँ जमा हुए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको इसमें कामयाबी नसीब करे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।